النظام فرنیچرز، جہاں پر ذمہ داران کی جانب سے پھر ایک مرتبہ عوام کے لیے انتہائی بہترین و پرکشش آفر محض 25,999 روپے میں مکمل میرج سیٹ پیش کیا جا رہا۔ مزید تفصیلات کے لیے سیدھے علی آباد برانچ النظام فرنیچر پر تشریف لائے۔ ناظرین السلام علیکم، آداب، میں مریم فاطمہ ایشین ٹی وی نیوز کی اسپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں۔ دیکھتے ہیں 11 جون کی اسپیڈ نیوز۔ این ڈی اے کے لیڈران اسمرتی ایرانی اور انوراگ ٹھاکر سمیت 37 وزراء کو مودی کی نئی کابینہ سے بے دخل کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ اسمرتی ایرانی اتر پردیش کے امیٹھی سے الیکشن ہار گئی تھی۔ اتوار کو نریندر مودی نے تیسری مرتبہ بطور وزیر اعظم حلف لیا تھا۔ الجزیرہ پر پابندی کے خلاف پٹیشن پر سماعت کرتے ہوئے اسرائیلی عدالت نے الجزیرہ کے خلاف اقدام کو مثالی قرار دیا۔ یاد رہے کہ 5 مئی کو اسرائیلی حکام نے یروشلم کے ایک ہوٹل میں الجزیرہ کے آفس پر چھاپا مارا تھا اور غزہ جنگ کے خاتمے تک چینل کے تمام آپریشنز کو روک دیا تھا۔ بی جے پی کارکنوں کو اپنے امیدوار کی جیت کا جشن مناتے ہوئے دکھایا گیا۔ ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس سے کروپاڑی گاؤں میں تنازع پھیل گیا ہے۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کارکنان کرناٹک کے جنوبی کنڑ ضلع میں کروپاڑی مسجد کے سامنے اشتعال انگیزی کرتے ہوئے جے ایس آر کے نعرے اور جے مودی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عام انتخابات کے بعد کسی مسلم نے مرکزی وزیر کے طور پر حلف نہیں لیا۔ 1999 میں واجپئی حکومت میں 2 مسلمان وزیر شامل تھے، جبکہ 2004 اور 2009 میں یو پی اے اتحاد کی حکومتوں میں بالترتیب 4 اور 5 مسلمان وزارتی کونسل میں شریک تھے۔ بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے سربراہ امت مالویہ نے آر ایس ایس کے رکن شانتنو سنہا کے خلاف 10 کروڑ کا ہتک عزت کا مقدمہ درج کیا ہے۔ خیال رہے کہ شانتنو سنہا نے مالویہ پر خواتین کے سیکشول ہیرسمنٹ کا الزام عائد کیا ہے۔ مالویہ کے وکیل نے سنہا کو نوٹس جاری کیا اور ان سے سوشل میڈیا پوسٹ ہٹانے کی مانگ کی ہے۔ اتر پردیش میں ایک لڑکی کے انکل کی شکایت پر اس کے شوہر کے خلاف کڈنیپنگ کی ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی ایک بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ لڑکی اور اس کا شوہر دونوں بالغ ہیں اور انہیں دستور کی دفعہ 21 کے تحت ساتھ رہنے اور اپنی خواہش کے مطابق شادی کرنے کا حق حاصل ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا کہ ایک بالغ فرد کو ملک میں کہیں بھی سفر کرنے اور اپنی پسند کے فرد کے ساتھ رہنے اور شادی کرنے کا حق حاصل ہے، جسے چھینا نہیں جا سکتا۔ انڈین یونین مسلم لیگ، جو کیرالہ میں کانگریس کی قیادت والی سیاسی اتحاد یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ میں شامل دوسری سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، نے راجیہ سبھا کے لیے اپنے امیدوار کے طور پر سپریم کورٹ کے وکیل اور کیرالہ مسلم کلچر سینٹر کے صدر ایڈوکیٹ ہاریس بیران کو نامزد کیا ہے۔ ترووننتپورم میں ریاستی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد آئی یو ایم ایل کے ریاستی صدر سید صادق علی شہاب نے یہ اعلان کیا۔ دہلی فساد کی سازش کے الزام میں جیل میں قید سماجی کارکن شرجیل امام کی ضمانت پر سنوائی کے دوران ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ، جس نے شرجیل امام کو بغاوت اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ یو اے پی اے کے معاملے میں ضمانت دینے سے انکار کیا تھا، اس کے خلاف الزامات کی شدت سے متاثر ہو گئی تھی۔ منی پور میں 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی مرکز اور ریاست کی بی جے پی حکومت تشدد پر قابو پانے میں ناکام ہے۔ وزیر اعلیٰ کی سیکورٹی ٹیم پر جنگجو نے حملہ کر دیا، جس میں 2 آفیسر زخمی ہو گئے۔ جیبریام ضلع میں گزشتہ دونوں تازہ تشدد کے پیش نظر وزیر اعلیٰ وہاں کا دورہ کرنے والے تھے۔ لوک سبھا انتخابات کے بعد یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ نہ ایکناتھ شندے گروپ کو شیو سینا چھوڑ کر کوئی فائدہ حاصل ہو سکا، نہ این سی پی سے بغاوت کر کے اجیت پوار گروپ کے کچھ ہاتھ آیا۔ ایسی صورت میں لوگ ان دونوں گروپ، خاص کر شیو سینا اراکین کے گھر واپسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی کابینہ میں قلمدانوں کی تقسیم کے ساتھ قیاس آریوں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ وہ اپنی اتحادی پارٹی تلگو دیشم یا جے ڈی یو کے دباؤ میں ہے۔ ان اطلاعات کے برخلاف کہ چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار وزارت داخلہ امت شاہ کو دینے کے خلاف ہے اور اہم وزارتوں پر انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے۔ مودی نے اپنی پارٹی کے سینئر لیڈروں کی سابقہ وزارتیں بحال رکھے۔
नरेंद्र मोदी की 72 रुकनी नई काबीना में इस बार भी सलाहियत और कारगुजरी से ज़्यादा आइंदा होने वाले इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के इम्कानात पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। यही सबब है कि उन रियासतों से जहां असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं काबीना में ज़्यादा नुमाइंदगी दी गई है आइंदा चंद महीनों में महाराष्ट्र और हरियाणा में, जबकि आइंदा साल बिहार में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। नई काबीना में मज़कूरा तीनों रियासतों से 17 वज़ीर बनाए गए। जम्मू के रियासती ज़िले में यात्रियों के बस पर होने वाले हमले के खिलाफ अवाम में सख्त बरहमी पाई जा रही है। अपनी नाराज़गी के इजहार के लिए अवाम ने कई जगहों पर एहतजाज और मुजाहरे भी किए। मुजाहरा करने वालों में कांग्रेस समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातें भी शामिल रही। इतवार की शाम होने वाले इस हमले में 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि 33 अफराद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज है। रियासत में बेशतर मुकामात पर अवाम बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। हस्ब तौक़्क़ो 9 जून से बारिश की ज़ोरदार शुरुआत हुई। नासिक, जहां किसानों को सबसे ज़्यादा मानसून का इंतज़ार रहता है, वहां बारिश तो हुई लेकिन इसके साथ नुकसान भी हुआ है। मुख्तलिफ इलाक़ों में कई दरख्त गिर गए, जबकि प्याज का ज़ख़ीरा करने के लिए बनाए गए शेड ढेर हो गए। हत्ता कि 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शुमाली कोरिया की जानिब से बार बार कूड़ा क्रिकेट से भरे के गुब्बारे भेजने के जवाब में जनूबी कोरिया ने अपनी सरहद पर लाउड स्पीकर के जरिए प्रोपेगेंडा दोबारा शुरू कर दिया। इसराइल की जंगी काबीना के एक अहम रुकन और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा बेनी ने गज़ा जंग के मुताल्लिक़ नेतन्याहू से इख्तिलाफ़ात के सबब इस्तीफ़ा दे दिया है। इस इस्तीफ़े को इसराइल में सियासी तब्दीली के इशारे के तौर पर भी देखा जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज का दायरा भी बढ़ता ही जा रहा है। जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की सरबराही में कायम कमीशन ने साबिक़ा भारत राष्ट्रीय समिति हुक्मरानी के तहत तेलंगाना हुकूमत के ज़रिए किए गए बिजली की ख़रीदारी के मुआहदों में बेज़ाब्तगी में तहक़ीक़ात के लिए साबिक़ा चीफ मिनिस्टर KCR को नोटिस जारी किया है। मुआहदों में इसकी शमूलियत के बारे में तफसीली जवाब कमीशन ने 15 जून तक जवाब तलब किया है। KCR ने जवाब में तोसी की दरख्वास्त की है और ज़रूरी वजाहतें फ़राहम करने के लिए 30 जुलाई तक इजाफ़ी वक्त तलब किया। कन्नड़ के एक्टर दर्शन को बेंगलुरु में कत्ल केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने तफसीलात बताई है। मुतासरा की शनाख्त रेणुका स्वामी 33 साल के तौर पर की गई है, जो चित्रदुर्गा का रहने वाला है, जिसकी लाश 9 जून को बेंगलुरु के कामाक्षपालिया में बरामद हुई थी। कामाक्षपालिया पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में तकरीबन 10 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मंगल के रोज़ ग्रुप के साथ एक तारीख़ी मुआहदे पर दस्तखत किए, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात में जदीद टेक्नोलॉजी और दिफाई ग्रुप है, जिसमें मिज़ाइलों, हथियारों, बग़ैर पायलट के प्लेटफॉर्म्स और साइबर सिस्टम्स में अपनी महारत को यकजा करते हुए स्ट्रेटेजिक दिफा और फ़ौजी डोमेन्स में ताउन किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस ने एक NRI को गिरफ्तार किया, जो गोशा महल BJP के MLA T राजा सिंह को फ़ोन पर धमकियां दे रहे थे। दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात के रहने वाले मोहम्मद वसीम बाकायदगी से राजा सिंह को फ़ोन करते थे। MLA ने हैदराबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और मुकदमा भी दर्ज किया गया। मुलजिम का ताल्लुक पुराने शहर के इलाके बारकस से है। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने राजा सिंह को की जाने वाली कॉलों की असल मोहम्मद वसीम के फ़ोन और IP एड्रेस का पता लगाया। पुलिस ने इनके लिए लिकआउट सर्कल जारी किया और तमाम एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दिया गया। जब मोहम्मद वसीम दुबई से हैदराबाद शमशाबाद के एयरपोर्ट पहुंचे तो साइबर क्राइम पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट विजिलेंस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, क्योंकि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद ने आज और कल के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मौसलाधार बारिश, गरज चमक, आसमानी बिजली गिरने और ज़ालाबारी का इम्कान है। मदद के लिए GHMC के हेल्पलाइन नंबर 9000 11 3667 पर कॉल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में नामालूम अफराद ने गोली मारकर एक मस्जिद इमाम का ही कत्ल कर दिया, जिनकी शिनाख्त मौलाना अकरम की हैसियत से हुई है। इनकी नाश मंगल की सुबह अपने ही घर के बाजू एक सुनसान मुकाम से बरामद हुई। मुकामी लोगों ने नाश को देखने के बाद पुलिस को इसकी इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी।
कर्नाटक के नए वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार ने आम इंतखाबात के हालिया नताइज को खतरे की घंटी करार देते हुए स्ट्रेटेजिक रेवोल्यूशन की ज़रूरत पर जोर दिया है। कर्नाटक की 28 लोकसभा नशिस्तों में से कांग्रेस सिर्फ 9 पार्लिमानी हलकों पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही। जगत प्रकाश नड्डा ने मंगल को सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत का चार्ज संभाला। वजारत के सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा और दीगर सीनियर ऑफिसर्स ने निर्माण भवन में वाक़ वजारत के ऑफिस में मिस्टर नड्डा का खैर मक़दम भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए 5 मई को मुनक़िद होने वाले कौमी अहलियत के साथ दाखिला टेस्ट नीट 2024 में मुबैना तौर पर एग्ज़ाम से क़ब्ल पेपर लीक से मुताल्लिक़ गड़बड़ी और धोखाधड़ी के इल्ज़ाम वाली अर्जियों के पेश नज़र दाखिले से मुताल्लिक़ काउंसलिंग के अमल पर रोक लगाने से मंगल को इनकार कर दिया, लेकिन इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया और इससे जवाब तलब किया है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से आवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविक़ार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा आवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफ़र महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपने लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलीआबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाएँ।